need of the hour. Let us adopt the concept of Chardi Kala, the art of living in high spirits and eternal optimism, is the slogan given to us by Guru Gobind Singh Ji, the 10th Sikh Guru, which means keep your spirits high no matter what the situation. Have faith, keep doing good, and stay positive. Do your best, then leave the rest to God. Yes, the night is dark and deep, but when was it not permitted to light a small lamp? When the dreamed home you built with affection and love was drowned in destruction, when was it not permitted to pick up small bricks and stones to rebuild a small, peaceful heart again? In the poetic, uplifting words of Shri Harivansh Rai Bachchan, I would like to recite his poem. है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वपन ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, बादलों के अश्रुओं से धोया गया नभ नील नीलम, बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम, का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम, प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती नव घनों में चंचला बिजली, वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई, आंख से मस्ती झपकती बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, रह गई तो ले गई उल्लास के आधार, माना पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु निर्माण के प्रतिनिधि मानव को एड्रेस किया है, किंतु निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ निजम से, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ निजम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। थैंक यू। Thank you very much, ma'am. Since Vanita is here, I would just like to remind that for other members of the family who could not join, this would get uploaded on YouTube, and if they missed, they could definitely see this on YouTube. Diya Jalana Kab Mana Hai, very nice, very positive, and it's nice to see members putting very positive notes and messages. There was one from Secretary Shuchi this morning for all members joining to keep their cameras on. Also, you unmute yourself, because sometimes by default when you join, I think you get into mute mode. So during fellowship time, definitely remember to
unmute yourself when we are on Zoom. And during the meeting, then again, everyone is muted. And as and when members are joining to speak, just remember to unmute yourself. Besides that, there's been very nice posts on the WhatsApp, amongst members. Just to mention, one of them is about Dr. Rita and Dr. Sanjay Kalra, the 2000 flower pots, gamlas, in the news as it said. I was just calculating 100 members and 2000 pots. So each one of us actually could claim 20 of them, and Dr. Kalra could replant them. Also, the bulletin has been very useful in keeping us all together, and I'm sure members would have read, especially Dr. Balram Gupta's tribute that he's given to PDG Kanwar Bedi, who passed away 2 days ago. So do definitely read the bulletin, do connect on WhatsApp, and do spread messages, good positive messages. We need to see these interactions. With this, we will get on forward with our meeting for this evening, and I would like to invite AG Dr. Rita Kalra to give the introduction to introduce our guest speaker for this evening, Lieutenant Ojasvi Sharma. AG Dr. Rita. Yeah. Thank you, President Sanjay. Good evening, fellow Rotarians, ladies and gentlemen, and welcome to this pleasant summer evening of May after a heavy downpour and thunderstorm yesterday. May is designated as Youth Service Month in Rotary, and what better way to celebrate with our youth icons, especially the Rotaractors and our chief guest who happens to be a Rotarian. Here we are in the midst of yet another lockdown after 2020, and there goes the merry-go-round once again. Stay home to stay negative. We are all back to cooking delicacies, watching Netflix, flooding messages on social media, reading books, our favorite books, just to make a positive impact on ourselves and our conscience. I am overwhelmed with the outstanding response from Rotarians all over the Tri-City to lend a helping hand to make the systems work in the pandemic. Help has been pouring in from philanthropists in India and abroad in terms of equipments, furnitures, infection control kits, food, plasma, oxygen, drugs, and the list goes on. And I would like to mention, Indu ma'am, diya nahi, yahan to puri mashal jala di sabne mil karke. I mean, also in gratitude for the prayers and blessings which keep motivating us and energizing us to fight this tough enemy. When this is all history, we will have a movie based on the bestseller fiction novel someday. Talking of films and its social impact on the society, we are confronted by a vital question. Does cinema have any impact on society? There are two schools of thoughts. One line of thinking believes that films can never affect or reform the society or events taking place within it. But the other believes that medium does take a direct or indirect impact on the social streams, even though it may not be immediately perceptible. A good film does more than entertain or fill seats of the cinema. It has the power to change hearts and minds and sometimes society more widely, preferably a positive one. Prime Minister Nehru has stated the influence in India of films is greater than newspaper and books combined. So the filmmakers constitute an important segment of change makers and social influencers in India. Our chief guest today and the guest speaker is an Indian film director, producer, screenwriter based in Chandigarh, widely known for producing films and programs rooted in reality and raising pertinent issues. While these range from films to television shows and digital features, it's the short film narratives and documentaries that are very specific to him and have won him international repute
for uncovering and presenting daunting subject matters through more than 80 films and programs. Born and brought up in capital of India, Delhi, our chief guest has studied at Cambridge School, Srinivaspuri, New Delhi, and his alma mater of Punjab University, Chitkara University, Himachal Pradesh, DAV Senior Secondary School, Sector 8C, Chandigarh, and DAV Senior Secondary School, Sector 8, Panchkula. He holds several degrees and certifications to his credits, maybe much more than his age, and it is really very surprising. At the age of 32 years, he has several awards and recognitions, memberships to his credit, and the list is so long that I will absorb all the 20 minutes which are being allotted to him. Ojasvi has successfully made presentations to more than 40 international film festivals through his films across India, United States of America, United Kingdom, Canada, Australia, South America, Africa, Bangladesh, and Russia. And some of the, I would like to mention some of the accolades which he has received in the international festivals. Narrative short films called Chaurasi, Roo, Badalti Soch, Zuban, The Last Date, Loneliness. Short documentary which is Silver Lining, The Journey of Raspal Singh, Art Find Its Way, and many others. Televisions, Lucky Kabutar, Cha the Cup with Satinder Satti, Apne Bande. Social campaigns like Military Festival 2020, India Fights Coronavirus, Rotary Dinner in the Rotary Club of Chandigarh Shivalik, and his key strengths lies in planning and producing films and video-driven campaigns across various lengths and breadths of the country. He has done many video commercials, documentaries, talk shows, televisions, internet and mobile platforms across all scales. He promotes films and video projects of wide range of budgets and promotes fresh regional talent. So we welcome Ojasvi Sharma, Rotarian Ojasvi Sharma. Thank you, Dr. Kalra. मेरे को मैम पसीना आ गया सुनते सुनते जितना आपने बोला. Thank you so much, and good evening to all the members of Rotary Chandigarh Midtown. I think बहुत अच्छा लग रहा है और I hope everybody is able to listen to me. सबके mic mute है. कैसे पता लगेगा? Yes, you're clear. Yeah, we can hear you. Right. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. So it has been a very roller coaster journey, और I'm very happy, you know, कि actually एक childhood से infatuation होती है ना कि films देखनी है. अब घर बैठ के भी सबको films ही देखनी है. तो it's a very appealing और glorifying सी field है. Let me put it very point blank. और जैसे डॉक्टर कालरा ने कहा कि इतनी डिग्रीज कर ली हैं, तो मैम वो यही होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि पहले आप कुछ सिक्योर कर लो एंड देन यू वेंचर आउट इनटू मेकिंग फिल्म्स. तो अभी हालत ये है कि फिल्म मेकिंग को इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, द मोस्ट इकोनॉमिकली, जिसको कहते हैं ना कि इफ यू see a movie and जितना आज की डेट में gross they are earning 100 crores, 200 crores, 300 crores, इतने कम टाइम में कोई इंडस्ट्री नहीं है except maybe pharmaceutical या कोई हो जिनका टर्नओवर इतना हाई वॉल्यूम का है. और आज की डेट में आप सुन भी रहे हैं तो एक्सपेक्टेंसी लोगों की यही होती है कि वो फिल्म स्टार से ही उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ डोनेशन भी कर लें, जैसे कि सोनू सूद इज डूइंग सो मच. और तो फिल्म्स में एक है कि अनलेस यू नो वी गेट कनेक्टेड टू द ऑडियंस एट दैट लेवल कि लोगों को हमारी जिंदगी और हमारी कहानियां उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा ना लगने लग जाए, तब तक वो कनेक्शन बनता नहीं है. तो आई एम वेरी
फॉर्चुनेट एंड हैप्पी। एक किस्सा जो जैसे कि मतलब इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन सोसाइटी के बारे में बात करें तो इन द नंबर ऑफ फिल्म्स दैट आई हैव डन, अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे लेटेस्ट फिल्म जो एडमिटेड जिसके बारे में जिक्र करूंगा, विच इज ऑन थर्ड जेंडर एजुकेशन। धनंजय चौहान पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं और एडमिटेड उनकी बायोग्राफी है जो हमने डायरेक्ट की है। वो इस साल 2021 नेशनल अवार्ड्स के लिए वो फिल्म रिकमेंडेशन में मूव की है आफ्टर 16 अवार्ड्स, और वो फिल्म 2020 में रिलीज भी हुई। तो हम जब भी कोई सब्जेक्ट मैटर एक्साइट करता है उसमें मैं ये देखता हूँ कि जब तक कोई सब्जेक्ट मैटर मेरे को एक्साइट नहीं करेगा वो ऑडियंस को कैसे करेगा। एजुकेशन का एक मुद्दा है इस फिल्म में, थर्ड जेंडर की रिकग्निशन का मुद्दा है, और उसके आसपास और भी इतने सारे मुद्दे हैं, वो सारे हम फिल्म में लेके आए। फिर एक फिल्म की हमने जुबान, which is based on witness protection bill, which is still not an act in India। तो अगेन उस फिल्म में वो मुद्दा उठाया गया एंड वो फिल्म बहुत इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में रन की, और फिर फाइनली ये सारी फिल्म्स आके आपको सारे पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे या सोनी पे या जिन जिन पे आज की डेट में डिजिटल लोग सब घर पे देख सकते हैं, आप इन फिल्मों को देख सकते हैं और टीवी पे भी देख सकते हैं। फिर एक मैंने फिल्म बनाई थी लकी कबूतर, मैम ने जिक्र भी किया। वो इन्फैचुएशन है कि हमारी नॉर्थ इंडिया की यूथ क्यों कनाडा जाना चाह रही है, और वो फिल्म एक कॉमेडी है। अगर आज भी आप पीटीसी पंजाबी चैनल ऑन करेंगे तो आपको वो फिल्म कभी भी दोपहर को 2 से 3 के बीच में या कभी भी उनके मैटनी आवर्स के टाइम में वो आप मूवी देख सकते हैं। तो ये आइडियाज भी फिल्म का एक बहुत बड़ा एक चांस भी कह लें कि फिल्म जरूरी नहीं कि वो समाज में कुछ सुधार करने के लिए बनाई जाए। कभी कभार आप समाज में कुछ देख लेते हो और उसको आपको दर्शाना जरूरी हो जाता है। एक फिल्म ना एक समाज की रिफ्लेक्शन भी है। जैसे कि एक चलन चला था 2008 में जब फिल्म आई थी 3 इडियट्स। उस फिल्म के बारे में सारे लोग जानते हैं कि चेज योर, अपना पैशन फॉलो करो और सक्सेस आपको फॉलो करेगी। तो मुझे नहीं लगा कि वो फिल्म से लोगों ने एंटरटेनमेंट पूरा लिया, लेकिन आज भी हमारी थॉट तो कंजर्वेटिव है ही है कि कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा फोटोग्राफी करने निकल जाए और पेरेंट्स घर आके पूछें कि आप बेटा कितना महीने का पैसा कमा लेते हो, जिसका कभी बच्चे के पास जवाब होता ही नहीं है। और मुझे लगता है ऐसा जवाब तो शायद एक देश के क्रिकेटर के पास भी नहीं होता होगा कि वो महीने का कितना पैसा कमा लेते हैं, या एक एथलीट के पास भी जवाब नहीं होता। तो फिल्म्स जो हैं वो समाज को जो उसमें बन रहा है या दिख रहा है, या एक बहुत बड़ा केस स्टडी बन गई है। जैसे किसी भी, अब आज बीच में चाल चलन चला था, अगर आप सर मैम सब ने पूरे सब रोटरी के मेंबर्स ने अगर कुछ फिल्म्स देखी होंगी तो एक दौर आया जिसमें बायोपिक्स ही बननी शुरू हो गई। हरियाणा में एथलीट्स ले आओ, उनकी बायोपिक्स बना लो। बहुत सारी बायोपिक्स एकदम से बननी शुरू हो गई। क्रिकेटर्स की बायोपिक बननी शुरू हो गई, सचिन तेंदुलकर की बन रही है, सबकी बन रही है, गीता बबीता फोगाट की बन रही हैं, सबकी बायोपिक बननी शुरू हो गई हैं। अब वो बायोपिक्स खत्म हो गई हैं क्योंकि लोगों को अब रियल लाइफ हीरो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ जितना करते नहीं है उससे ज्यादा दिखाना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन भी मूवीज की इस हिसाब से विद टाइम बहुत चेंज होती रही है। तो शुचि मैम, रिटा मैम, अगर आप थोड़ा सा इसको मॉडरेटेड रखेंगे तो मुझे लगेगा कि सारे मेंबर्स को भी थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव सा फील हो इन केस, क्योंकि मैं एक तरफा बोलता रहूंगा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो बहुत जरूरी रहेगा। No problem, Ajasvi. आप all our members can unmute themselves. तो हाँ आप जी, मतलब बातचीत करके मुझे लगता है वो ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे इंटरेक्शन करो। You're most welcome. We can have this meeting the way you want it, ताकि सब participate करें. Not a problem at all. हाँ जी, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। So everybody is, as Jasvi is saying, everybody is most welcome to unmute and
interact and participate, please. ऐसे फिल्मों की तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे किस्से हैं, बिकॉज इट्स बीन मोर देन अ डेकेड मेरे को अब फिल्में बनाते हुए, एंड इतनी फिल्म्स बन गई हैं, इतने लोकेशंस में इतने लोगों के साथ काम किया है। और वैसे आप सबको शर्मा बता साहब, दूं मेरा एक क्वेश्चन है कि आज जी तक सर। पिछली पुरानी पिक्चरें हमारे मन से नहीं उतरी, पिछले जी पुराने सर। गीत हमारे मन से नहीं उतरे, पिछले जी पुराने सर। एथिक्स जो सिखाए गए थे, जो जी डिस्प्ले सर। किए गए, तो आज तक वो दिल में घर कर गए। ये क्या जी राज सर। है कि आज नए वाले चीजें नहीं कर पा रही? सर Over to you. सब लोगों को ना अपना जनरेशन से लगाव रहता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये नहीं, इसमें लेकिन नया नई पुराने का जनरेशन दौर को नहीं ज्यादा है। लगाओ, गाने वही जो गाते हैं नई जनरेशन। जो बच्चे आज 8-10 साल के हैं, उन्हें आज की सदी ही जनरेशन से ही लगाव रहेगा, और वो 50 साल बाद इसी को बोलेंगे। तो हर ना एरा की एक सादगी है, एक्सपोजर लेवल चेंज हुआ है। अब मैं अगर एक फिल्म में सीन लिखूं तो 1980 की फिल्म में मैं ये नहीं लिख सकता कि एक लड़का और एक लड़की मिले और उन्हें ग्रीन टी पी, नहीं, वो मैं आज लिख सकता हूँ क्योंकि वो आज के दौर में पी सकते हैं। पहले लोग मिलते ही नहीं थे, अब बिना मिले हम ट्रस्ट नहीं करते। तो वो जनरेशन में चेंज आया है और पूरे वर्ल्ड में चेंज आया है। अब देखो आप कितना इरिटेटिंग लगता है वर्ड। पिछले 1 साल से सोशल डिस्टेंसिंग सुन रहे हैं और ह्यूमैनिटी बननी नहीं थी कि वो अलग अलग बैठे, साथ में बढ़ने के लिए ही बनी थी। तो सबको अपने अपनी जनरेशन से लगाव है सर। उस टाइम का म्यूजिक में डिफरेंट था, सादगी थी बहुत, और ना अहमियत थी, क्योंकि अब आज के समय युग में सर हर महीने एक नई फिल्म आ रही है। पहले फिल्में इतनी तेजी से भी नहीं आती थी क्योंकि बहुत महंगा मीडियम था, नेगेटिव के रील पे बनती थी फिल्में। आप मुगले आजम देखें, मेरे मदर आज भी पाकीज़ा, मुगले आजम मुझे बार बार बोलते हैं कि ओजस्वी देख, गुरुदत्त साहब की फिल्में देख। मतलब हम एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा पीछे से शुरू होते हैं 1910 से, और अगर पूरा वर्ल्ड के सिनेमा में ये चेंज आया है। पहले चीजों को बड़ी सादगी से, नजाकत से दिखाना। अब तो जैसे शॉपिंग मॉल है वैसी फिल्म कमर्शलाइज कर दी गई है, गाना भी डालना है, ये भी डालना है। तो वो चेंज आया सर। सबको अपने जनरेशन से लगाव है और सारे पीढ़ी की फिल्में अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी बनी है सर। आज भी बनती हैं सर, आज भी देखो इतनी अच्छी स्पोर्ट्स बायोपिक बनती हैं, सब में फैमिली वैल्यूज, इमोशन है। आज के जमाने में कितनी डिफरेंट मूवीज बनती हैं, कितनी अमेजिंग होती हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग एडमिटेड देखें, आप धनंजय की एडमिटेड फिल्म देखें, आपको 2020 की बनी हुई हमारी फिल्म मिलेगी देखने को। आप और भी फिल्में देखें उससे पहले की, आपको पता लगेगा कि आज भी वैसी फिल्में बनती हैं। और बस हमने शायद देखनी कम करती, क्योंकि हमारे मन में पर्दा बन गया है कि अब तो इस युग में ऐसी फिल्में ही बनेगी। नहीं, वो हमें सिलेक्शन करनी बहुत जरूरी है सर। फिर भी आज अंताक्षरी शुरू होती है तो गाने तो वही आते हैं जो 1980 से पहले या 1980 वाले। बट सलील सर, आप आज यंग बच्चों के अंताक्षरी देखो, वो आज के गाने गाते हैं, तो उन गाने आते नहीं है। बिल्कुल, वो गाने सर आते आपको पता है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर कैसे परखता है कि ये गाना हिट होगा? हम एक धुन चलाते हैं और हम उसको ना एक 2 साल के बच्चे के आगे रख देते हैं, अगर वो बच्चा टांग हिला लेना, वो गाना सुपर हिट है सर। वो 100 करोड़ का बिजनेस करके जाता है गाना। अच्छा, जिस धुन पे बच्चा भी कर लेना ऐसे, वो जिस गाने पे बच्चा ही कर ले, जो इमोशन, जिस बच्चे को अभी ये नहीं पता उस वर्ड का मीनिंग क्या है, लेकिन वो धुन पकड़ ले, वो गाना सुपर हिट है। और ये पिछले 100 साल से हिंदुस्तान में बच्चे मॉडर्न पैदा होते हैं। और जिसकी बेटे जी सर, ये जो बच्चे डांस करते पैदा होते हैं। ये एक मीडिया है जो कि माइंड, जो फिल्म्स है एक मीडिया है जो कि माइंड को मोल्ड करता है। जैसे चोपड़ा साहब ने कहा या बाकियों ने कहा, हम जी सर टाइम की इसलिए पिक्चरें याद करते हैं, जैसे 2 आंखें 12 हाथ हो गई, ये होगी, ये हमारा माइंड मोल्ड करके हम वी आर बेस्ड नाउ ऑन certain morals also. You compare it with present OTT platform like Out of Love, Criminal Justice and Closed Door. It is nothing but open pornography
which will mold the minds of these teenager youngsters and will draw them only towards few things like sex, like drugs, and like perversions of mind as criminals जी just behind closed जी doors. So, is it not the duty of the young directors, producers, story writers to put the morals in that way? Because it is a look at the movie of olden time of 40 years, Dilek Mandir, and compare it with the movie like Out of Love, which is being shown these days on every Friday. Look at the other OTT platform. They are just making money out of this only. And every time they increase the subscription. Where is their moral ethics? No ethics. सर इसमें ना इसके दो पहलू हैं। सबसे पहली चीज जो इंडियन ओटीटी है वो उसको सेंसरशिप कंट्रोल नहीं कर पाया है। I know. सबसे पहली चीज, क्योंकि एक आइडियली एक हम जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो मैं अगर एक कंटेंट शेयर नहीं कर पाऊंगा आई थिंक इधर, तो हमारी फिल्म्स ना I can give you access to Jasvi. Okay ma'am, I'll just show you one thing. I'll Please try give you an example. हाँ जी I think I can see. Let me see if I can show you a photograph. I would like you to show it. Sorry, ये ना थोड़ी सी टेढ़ी नजर आएगी आपको फोटो, but this is a certificate of the Central Board of Certification. Okay. This is ये अगर आप थोड़ा देख पाए, ये मूवी का टाइटल है सर एडमिटेड। ये अगर ये पढ़ पाए है ना, हाँ जी और इनकी कैटेगरी होती है सर यू। Yes, we know. दिस इज यूनिवर्सल वीडियो कैटेगरी। ये आप सब लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये एडल्ट कैटेगरी की फिल्म नहीं है, ये यूनिवर्सल है, which can be watched by everyone above the age group of 13-year-old. I am talking about today's Out of Love also. It is universal as well as adult, oblique adult. Sir, let me come to the point. Let me take you through a journey of film first, why it is coming that way. Okay. And this is the name of the applicant, you can read, and ये सारा। Your name is there. Very nice. जी sir, right sir. सर जितने हमारे देश में हर तरीके के लोग हैं सर, जितनी डाइवर्स ऑडियंस है उतना ही डाइवर्स क्रिएटर है। Yes. अब इस चीज को हमने समझना जरूरी है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में ड्रग्स नहीं है? सर बहुत है। उसकी रिप्रेजेंटेशन अब इस कैटेगरी ऑफ सिनेमा को नॉयर सिनेमा कहते हैं, डार्क सिनेमा जिसको आप कहते हैं। अब चक्कर ये है कि मार्केटिंग कंपनीज आर नॉट प्लेइंग द गुडविल हियर, द गुड डीड्स हियर, दे आर ब्रिंगिंग दैट थिंग ऑन टू द फ्रंट। Okay. प्रॉब्लम ये नहीं कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये हमेशा थी सर। आप आज भी बी ग्रेड सिनेमा हॉल्स भी मिलेंगे आपको, ये नहीं कि वो सिनेमा में भी पिक्चरें लगती थी। हम वहां कभी देखने नहीं जाते थे सर, हम अच्छी फिल्में देखने जाते थे। तो आज और बी ग्रेड सिनेमा हॉल मैं आपको पंचकुला में दिखा सकता हूँ सर, मैं पूरे ट्राई सिटी में आपको ऐसे थिएटर दिखा सकता हूँ जहाँ पे, या छोटे छोटे गाँव में जहाँ पे बी ग्रेड या सी ग्रेड फिल्में जिनको हम बोलते थे वो लगती थी, और वहाँ उस सेगमेंट को देखने वाले लोग जाते थे और उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो फिल्में बनाई जाती थी। बिल्कुल। अब अगर ये हमारी जिसको कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो गई, या ऑब्सेनिटी को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए फिल्में नहीं बनाई गई। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड ऑब्सेनिटी इज अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर ऑफ द स्टोरी। Okay. इट इज नॉट टू बी प्रमोटेड, यू हैव टू सी। अब देयर इज, अब इवन इन नॉवेल्स वी हैव, if we read a novel written by some very prominent authors, they will also write things that ideally children should not read. But once that book goes into the hand of children, you will never come to know if the child read it or not. At least in the film, you are aware, you're vigilant that that thing is happening. So this becomes a part of the self-censorship. Things will always be made. It is like you will say ki ban manufacturing of guns because it will go into the hand of criminals. That will never happen, sir.
Point is, we have to control it on our own will. Some producers will make it because they feel it right. अब ये हमारी मॉरल पुलिसिंग से लोग बनाएंगे नहीं या बंद नहीं करेंगे, हम चूज करेंगे कि राइट ये ऐसी लैंग्वेज या ऐसा कंटेंट मुझे नहीं देखना है, जिसको कहते हैं ना बैक ऑफ करना या उसे सपोर्ट ना करना। अब चक्कर ये है ना सर कि आंकड़े जो प्लेटफॉर्म्स के आ रहे हैं, इन फिल्मों की व्यूअरशिप और जो आप बाकी फिल्में बता रहे हैं उनसे 20-20 गुना ज्यादा है, तो कोई क्यों ना इस पे पैसा लगाए। इन्वेस्टर तो नुकसान उठा के फिल्म ही बनाएगा। तो ये एक साइकिल है, अगर इन चीजों को बंद करना है तो द बेस्ट ऑप्शन इज नॉट टू वॉच देम सो दैट देयर फिगर्स फॉल एंड देन ग्रेजुअली स्पेस फॉर गुड कंटेंट अपने आप जगह बनाता जाता है सर। और इट्स अ वेव, ऐसा नहीं है कि बुरी फिल्में पहले नहीं बनती थी, बहुत बनती थी सर। उन्हें एग्जिबिटर लगाते नहीं थे क्योंकि लोग देखते नहीं थे, अब लोग देख रहे हैं तो वो लगा रहे हैं। इनको विड्रॉ करना पड़ेगा, इनसे इनको बॉयकॉट करना पड़ेगा। जैसे गुंजन सक्सेना के ऊपर फिल्म आई, उसके ऊपर आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स ने कुछ उस पे सीन्स थे उनपे उन्होंने कंप्लेंट की, लेकिन वो पिक्चर तो कहीं नहीं गई, वो अभी भी आप देख सकते हो। तो इट इज वेरी इनइफेक्टिव, दैट इज एडवर्टाइजमेंट ऑफ फिल्म, दैट्स ऑल। तो सर लॉ जो है ना वो इक्वल देखता है आईज में। वो कहते हैं कि दे मार्केटेड कि आप कभी भी इन फिल्म्स को खोल के देखना, उसमें वो मेंशन करते हैं कि दिस फिल्म कंटेन स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ड्रग्स, उन्होंने मेंशन किया होता है। अगर हम उसको बगैर पढ़े देख रहे हैं तो वो गलती हमारी है सर। और जसवी इसमें ऑडियंस को अवेयर होना जरूरी है। वैसे भी जसवी आई थिंक there is a question from sorry जी मैम। No, I just wanted to contribute here, or just be, अगर हम लोग objectionable content की बात करें तो I think जो ये आवाज जाने लगी है। ये कौन है, गिल सर? हाँ जी, am I audible? अरे सर, yes audible sir. Welcome मेरे ख्याल से जस्ट अगर हम लोग objectionable content की बात करें तो it has existed long time back also. मैं एग्जांपल बड़ा रिसेंट सा देता हूँ। OTT पे हम लोग बहुत मूवीज वॉच करते रहते हैं, तो मैंने पिछले कुछ लास्ट वीक मैंने अपने बच्चों को कहा कि ओके लेट्स वॉच समथिंग ऑफ माय जनरेशन, 80s की मूवी या 70s की मूवीज जैसे हैं। तो आई शोड देम 3 मूवीज in a week and I was taken aback. मेरे बच्चे भी they were taken aback by few content. वो कहते कि सर पापा ये आपके टाइम पे भी ऐसा कंटेंट थे, see the movie scene, So I think every generation paves a way for the next generation. अगर तब ये movie scenes अगर थोड़े कम थे, तो they paved way for these movie scenes which are existing today, I think. So building blocks बड़े पुराने शुरू हो जाते हैं, I think, ये बनने। आपका जवाब होना चाहिए था कि उस समय मैं तो समझ नहीं सका, बट आप समझ गए हो, यू आर ग्रेट। एक्चुअली ये सारे टाइम थी ऑडियंस को चूज, जैसे हमें पता है कि ये मतलब ये हमारी विजडम है कि हमारे सामने चीज है कि हमने उसे ऑप्ट करना है देखना कि नहीं देखना है, दैट्स इट। कोई हमें फोर्स थोड़ी कर रहा है कि वो हम टीवी ऑन करेंगे तो वो चल पड़ेगा अपने आप, नहीं, हम चलाते हैं। जब हम चलाते हैं तो वो तो फिर हमारी विल है कि हमने उसे एक्सप्लोर किया है। Ojasvi, we have a question from Bhavneet, Rotarium Bhavneet, we call him Tiger वैसे प्यार से। Tiger, please ask your question. जी Ma'am, don't fix me up, but chalo, I will still ask. You said, sir, that the kids make a lot of difference in the sense if they're happy and if they kind of swirl their leg, you take it as a affirmation that the song is good. मैं तो ऐसे ही सोचा था बेचारी कटरीना कैफ और आलिया भट्ट बेचारी के क्या उनको गानों में डाल रखा है, उनका कोई एफर्ट ही नहीं है बेचारों का। नहीं, that's the other thing. देखो वो आपने दरकिनार कर दी ना बेचारी, वो लेग्स लोग हिलाती रहती हैं, आपने बोला बच्चे नहीं, आप देखिए हम पिछले साल बहुत बड़ा एक लिरिसिस्ट है मनोज मुंतशिर, उन्होंने ना एक तरीके से इंडस्ट्री को बॉयकॉट ही कर दिया। केसरी फिल्म का बहुत ही उम्दा गाना था, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, उसको अवार्ड ना देते हुए किसी और गाने का अवार्ड चला गया था, और पूरी इंडस्ट्री कि ये गाना इतना इमोशनल, इतना पेट्रियोटिक, वो और जिस गाने के इंडेक्स में नंबर ऑफ व्यूज आप देखने शुरू करें
तो जो गाने लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर जो सुपर हिट हुए थे, वो ऐसा वो एक गाना था, मतलब आप इंजॉय करेंगे, बाला ओ बाला, बाला ओ बाला, ठीक है, और आप शैतान का साला, बाला बाला, ठीक है, और आप शादी में जाओ और ये गाना बज रहा है, मैं कह रहा हूँ डीजे 15 बार गाना बजाता है तो आपको वो दारू है सर But kids like the song. Kids like the song a lot. सर आप चीज को समझे, सर आप एक चीज को समझे, एक एल्बम जब बनती है ना पूरे म्यूजिक की, 5 गाने 4 गाने, उसमें असॉर्टमेंट डलता है, जैसे कि एक मिक्स्ड है। अब जब मिक्स्ड मिठाई का डब्बा आता है तो सारी सब्जियां पसंद की नहीं होती, सारी मिठाइयां पसंद की नहीं होती, उसमें से एक पसंद की होती है, 2 होती हैं, और एक होता है रिदम ट्रैक, एक होता है बीट ट्रैक, एक होता है लव ट्रैक। अब वो अलग अलग ऑडियंसेस को और स्टोरी के हिसाब से अलग अलग सिचुएशंस को करने के लिए होता है। अब आप कोई भी गाने जो टीवी पे रेडियो पे आप सुने, तो बीट ट्रैक्स को एक उसको ना हाई चार्जिंग सॉन्ग्स कहते हैं, वो कमर्शलाइज करने के लिए ट्रैक्स को बनाया जाता है और अपनी जगह वो सही काम करते हैं नंबर्स जनरेट करने के। देखिए फिल्म को आप चीज को समझे सर, एक फिल्म इंडस्ट्री की आज की डेट में ये हालत है, पिछले 1 साल से थिएटर्स बंद है। एक पूरी इंडस्ट्री जिससे आप डोनेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट विदाउट वर्क बैठी है, उनके प्रोजेक्ट्स बंद हैं क्योंकि ऑडियंस अभी इस हालत में नहीं है कि वो सिनेमा हॉल जा सके और वो फिल्में उनको पे कर सके। अनलेस वी पे 200 रुपीज 100 रुपीज पर टिकट, इंटरनेट पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बेस्ट फिल्में बनाएं और वो यूट्यूब पे डाल दें ताकि जो मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया है उसे आप फ्री में देखें। कैसे? तो मैं दूसरी फिल्म कैसे बनाऊंगा? नोबडी इज कमिंग टू पे। तो ये एक विशियस साइकिल है, इसको अलग अलग ऑडियंस, अलग अलग पॉकेट्स इनकम्स फुलफिल करती हैं। अब आलिया भट्ट होगी, कैटरीना कैफ, फिल्म इंडस्ट्री को ग्लैमर इंडस्ट्री भी तो कहते हैं। मैंने अभी इतनी शादियां हुई, शादियों में एक चाल चलन चला, आप लोग नोटिस करें कि कल्चर में कितना इम्पैक्ट होता है। आज से 10 साल पहले प्री वेडिंग शूट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, जिसमें एक ब्राइड और ग्रूम शादी से पहले जाके एक हिंदी गाने पे खूब सारी फोटोएं खिंचा के एक वीडियो बना के लाते हैं और वो शादी पे लोग सब जाके देखते हैं। अब आप सोचें, हीरोइन नहीं होगी, हीरो नहीं होगा, गाना नहीं होगा, कॉस्ट्यूम नहीं होगे, स्टाइल नहीं होगा, मेकअप नहीं होगा, तो आइडिया कहाँ से लाएंगे ये करने का? तो इन्होंने इससे एक पूरी अलाइड इंडस्ट्री बिल्ड हो गई, जिसको कहते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफर्स कितने इवॉल्व हुए सिर्फ फिल्मों के आइडिया से। तो फिल्म्स में एक स्टाइल इन्वेंट करने की भी एक बहुत बड़ी खूबी है। ये उस वजह से कितनी इंडस्ट्रीज बिजनेस करती हैं, फैशन डिजाइनर्स अपना बिजनेस करते हैं। किसी फिल्म में किसी हीरोइन ने बहुत बड़ा लहंगा डाला हो, दुल्हन कहती है मुझे दीपिका पादुकोण वाला लहंगा लेना है, तो मुझे ये 50,000 का लहंगा लेना है, मुझे कुछ लेना है। इस बेसिस पे तो मार्केटों में तो पूरा बिजनेस ही चल रहा है। तो वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ प्राउड की भी ठीक है, हम कुछ काम करते हैं, उससे ट्रेंड सेट होता है, और अच्छा ट्रेंड सेट हो ये तो और अच्छी बात है, बुरा ट्रेंड ना सेट हो इसकी हर अच्छा प्रोड्यूसर, जिसको कहते हैं निर्माता निर्देशक, कोशिश करते हैं कि कोई बुरा ट्रेंड ना सेट। टाइम जोशी, मेरा एक सवाल है। कैन यू हियर मी? जी सर। आप रोटेरियन हैं, कौन से क्लब जी से? सर। कौन से क्लब से? रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक सर। चंडीगढ़ शिवालिक। जी। मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे, सिंस आप यार यंगस्टर एंड यंग रोटेरियन, जी सर, आप एक ऐसा क्यों नहीं फिल्म बनाते? रोटरी हैज गॉट टैलेंट, रोटरी में इतना टैलेंट है, टैलेंट फॉर सिंगिंग, टैलेंट फॉर ड्रामा, टैलेंट फॉर डूइंग गुड वर्क। आप एक ये कॉन्सेप्ट लेके रोटरी के ऊपर एक फिल्म बनाए, मेरा एक रिक्वेस्ट है। मैं सर, आप बताएं, मैं ऑडिशंस अनाउंस कर देता हूँ अभी। एंड हाउ डू यू वांट मी टू पिक कि रोटरी हैज गॉट टैलेंट? आई थिंक
रोटरी चंडीगढ़, मतलब जितने भी हमारे रोटरी के क्लब्स हैं चंडीगढ़ में, इस पूरे एरिया में, ये सारे ही लोग, मैं डॉक्टर कालरा मैम से भी मिला, बजाज सर से भी मिला, सबसे, मतलब सबसे वेरिएडली मिला हूं, एंड मुझे इतने डेडिकेटेड लोग मुझे आज तक नहीं लाइफ में मिले। मुझे लगता है कि रियल जो हार्ड वर्क है उसे फिल्म में कैसे जस्टिफाई करूंगा, मेरे लिए चैलेंज है। आप सोचो, इतने लोग काम कर रहे हैं डे नाइट, एक फिल्म में मुझे एक सीरीज बनानी पड़ेगी 50-100 एपिसोड की, और एक एक एपिसोड जस्टिफाई करना पड़ेगा। आज सीरीज का क्वेश्चन है बेटे, आपने ऑडिशन लेना, हमारी क्लब का भी ऑडिशन ले लो, यही कितना टैलेंट है। नहीं सर, आपको मैं आप लोगों को ऑडिशन ले नहीं सकता सर, मैं आप लोगों का बहुत आप अपनी अपनी कैपेसिटीज में सर बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। रादर मैं रोटरी के लिए जो बेस्ट कर सकता हूं, मैं पिछले बिफोर आई बिकेम अ मेंबर, बिफोर आई बिकेम अ रोटेरियन, मैं उससे पहले से ही रोटरी के साथ जुड़ गया था, एंड मेरी कोशिश रही थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि हमारे इस रीजन में ना एक मीडिया इंटरफेस बहुत वीक है ऑर्गेनाइजेशन का। हम जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ को देखते हैं, उनका मीडिया विंग इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने छोटे से भी 100 लोगों को भी हेल्प किया होगा ना, उसका इतना बड़ा केस स्टडी बनाएंगे। और यहाँ हम लोग केस स्टडी पे केस स्टडी बनाते जा रहे हैं, पर उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे प्रॉपर। जी सर, तो सबसे पहले जैसे रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक ने डिनर इन द डार्क किया था, तो उसके लिए आई प्रोड्यूस्ड प्रोमोज। फिर अभी जैसे वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया इन्होंने 34 सेक्टर गुरुद्वारा में, अगेन आई हैव प्रोड्यूस्ड 15-minute फिल्म ऑन इट। तो ये केस स्टडीज को बिल्ड करके अगर हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक इस चीज का कोई फायदा नहीं है सर। मतलब ये वो वाली बात है। आपकी स्पेशलाइजेशन क्या, राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, या प्रोड्यूसर, फोटोग्राफर है? नहीं सर, कोरियोग्राफर। सही सर, फिल्म ना एक पूरी फैक्ट्री की तरह होती है। मैं आई एम अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर। ओके, ये मेरे फोर्टेज हैं। सो आई हेड द कंपनी, बट देन देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लाइटिंग डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। अब जैसे ये केस स्टडी फिल्म्स हैं, इसमें कोरियोग्राफी की क्या जरूरत है, इसमें कोरियोग्राफर का काम ही नहीं है कोई, ना मेकअप का काम है। इसमें वी ट्रैवल टू रियल लोकेशंस, फिल्म दोज लोकेशंस, मेरा पूरा टीम जाती है, क्रू जाता है, प्लान्ड एग्जीक्यूशन होती है, प्रोग्राम बनता है, एंड देन वी पब्लिश इट, दैट्स इट। तो it's a well coordinated activity that the company performs. फाइनेंस कितना इन्वॉल्व होता है बेटे? फाइनेंस सर प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर फाइनेंस सर, अभी एडमिटेड जो मैंने फिल्म बनाई थी, इट कॉस्टेड अराउंड 25 lakhs फॉर वन फिल्म। अब लेके चलें। और how much duration film that? How much duration that film was? सर 2 hour फीचर फिल्म। मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया अभी इसमें। अगर हम रोटरी का इमेज को बिल्ड करने के लिए फिल्म बनाते हैं, आई थिंक वी कैन गिव ग्रांट। रीता का आपको जरूरत है, समझाएंगे। वी कैन इवन गेट इट फंडेड फ्रॉम द रोटरी सोर्सेज और सर वी शुड डू इट। क्या रहता है ना कि रोटरी अक्रॉस द वर्ल्ड बेस्ड है, और हर चैप्टर, अब जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, अब अभी I've done a project for SGPC. The project will be announced, so but still I can discuss it because formally now that I have the file has been sent from our office. So there is a solar panels that will be set up on the Darbar Sahib, which will lead to saving of nearly 35% of the annual electricity that is being consumed by the दरबार साहब। तो उसके ऊपर पूरी एक फिल्म बनी है सर 6 मिनट की, which acts as a fundraiser for people to contribute to the setting up of the solar panels at the दरबार साहब। तो अब ऐसे ही अब आप देखें कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अगर काम कर रही हैं, तो उसे हाईलाइट करना इन अ पॉजिटिव स्पिरिट एक बहुत अच्छा टास्क है। अब हम लोग इतने
प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं सर, why are we happy कि only 30, 40 or 60 people only come? We will become a success when without us calling people 5,000 people turn up. That is a success. जैसे खालसा एड है, जैसे आप देखो, they just say कि we need help and million people are running after them, because you have to create that image in the people that we are together, we can drive the world together. Organizations जब तक खुद में बिजी रहती हैं ना, तब तक लोग नहीं जुड़ते, वो तो हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। एंड फिल्म्स एक लार्ज स्केल इम्पैक्ट क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती हैं इस मामले में। वेरी नाइस। Media is a very strong power. अगर इसका हम यूज करें तो The very powerful media, very powerful. सर, एंड मीडिया में बहुत बेटर अच्छी बात ये है कि वी प्रोड्यूस दैट कंटेंट। अब क्या है कि इफ वी हैव मेड दैट फिल्म, अब वो हमारे हाथ में, हम कहीं भी चला सकते हैं। इंटरनेट अब हमारे पास है, अब हम वी पुट दैट ऑन यूट्यूब, पुट दैट ऑन फेसबुक, वेयरएवर द ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड इट राइटफुल, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन के पास उतना अमाउंट नहीं होता कि वो किसी टीवी चैनल के पास चली जाए, क्योंकि देयर ट्रांसमिशन कॉस्ट इज हायर। न्यूज में दे आर वेरी लिमिटेड ऑन स्पॉट्स। अब वो इंटरव्यू लेके जाएंगे आधे घंटे का, वहां जाके चलाएंगे 2 मिनट का, हमारा मैसेज भी नहीं बचता उसमें। हम न्यूज लेने आते हैं, वो हमसे इंटरव्यू लेने आते हैं, हम अच्छा दिल खोल के इंटरव्यू देते हैं। तो वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पैकेज्ड कंटेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा आपको जितना बोलना है, जो बोलना है, हम आपको बना के दे देंगे, नाउ यू प्ले इट। एंड उससे ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा होना शुरू हो गया कि हमें अनकट कंटेंट मिलना शुरू हो गया, विच अगेन बिकेम बिग एडवांटेज। मेरा एक प्रोजेक्ट था समर्पण, विच आई डायरेक्टेड फॉर आशियाना चिल्ड्रन स्कूल, सेक्टर 16 पंचकुला में, इनकी 50th वो थी। मैं इसकी भी आपको शायद एक फोटो दिखाना चाहूंगा। क्लब भी जुड़ी हुई है उससे। जी सर। तो कंप्यूटर सेंटर डॉक्टर विभा जी सर, मैं वही कुछ ऐसे तो काफी, तो वो फिल्म सर समर्पण नाम से रिलीज हुई थी। एंड वो फिल्म यूट्यूब पे है अवेलेबल देखने के लिए हमारे पास। तो उस फिल्म में भी हमने दिखाया कि 50 इयर्स में उन्होंने क्या पूरा अचीव किया है। एंड उससे बहुत जो लोग जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं बच्चों को, दे केम फॉरवर्ड। फिल्म की पूरी स्क्रीनिंग हुई डीसी मॉडल स्कूल में, लगभग 700 लोग देखने हैं उस फिल्म को। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पंचकुला मुकेश आहूजा सर ने फिल्म को लॉन्च किया आके। और आई थिंक जब एक ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोगों की ग्रास रूट लेवल पे अटैचमेंट भी होती है, और बच्चों के साथ में भी ज्यादा है, तो जितने लोग थे, मतलब पीपल हु रियली वांट टू हेल्प यू विल नॉट टेक टाइम इन थिंकिंग कि वो क्या मिलेगा क्या होगा। दे जस्ट राइट अ चेक एंड दे जस्ट गो कि ओके प्लीज हेल्प दीज किड्स, और एजुकेशन एवरीथिंग। तो वेरी इफेक्टिव। अब इवन they are doing very well now. तो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल की फंक्शनिंग को भी शोकेस करने में फिल्म्स का बड़ा अहम रोल रहता है। अब तो इसको, ये ना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती फिल्म, बट दे आर एंटरटेनिंग, क्योंकि nobody wants to see a boring film at the end of the day. Even if it has to be informational, it should not be boring at all. मेरा एक सवाल है। जी सर। I am editor of our club bulletin for last 12 years, और अभी इस साल से हम अपना जितना आज का भी मीटिंग जो है, this will be on YouTube in a day or two। तो अगर हम आप देखेंगे YouTube रोटरी चंडीगढ़ बिकता हूँ, हमारे सारे मीटिंग जितने हमने इस साल में किए हैं, और उससे पहले फेसबुक में लाइव कर रहे थे, जब लाइव मीटिंग हो रहे थे, लाइव आई मीन फिजिकल मीटिंग हो रहे थे, तब फेसबुक में था। और इस साल से जब से संजय भाटिया प्रेसिडेंट बने, all our meetings are there on YouTube. Now, how do
हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू प्रमोट दीज यूट्यूब चैनल, ये हमको नहीं पता, ये हम आपसे सीखना चाहते हैं, इसमें आपकी हेल्प चाहिए। आप सर प्रमोशन सबसे पहले तो ना घर के लोगों को ही करनी है, आपका जो ये वाला बाहर वाले नहीं कर पाते इतनी, हमारे अपने मेंबर्स ही जितने भी उस मीटिंग का पार्ट बनते हैं, इफ दे share that video, that is the only best thing, the channel grows. Any channel has grown first by the own people who have to advocate that channel. सबसे पहली चीज यही है सर। प्लस मीटिंग्स के बाद आई वुड सजेस्ट कि रोटरी चंडीगढ़ मिड टाउन को अच्छी पैनलिस्ट के साथ टॉक्स, जैसे आपस में ही आप यू आर वेरी एक्सपर्ट्स इन योर ओन, एक एक्सपर्ट टॉक आप रिकॉर्ड करके ना इतने ज्यादा लोगों के साथ नहीं, 2 लोगों के साथ ही वो आप पब्लिश करनी शुरू करें, एंड दैट विल बी अ गुड बूस्ट। जैसे भी आपके साथ जो डिस्कशन हो रहा है, ये अभी जी सर, चैनल पे आ जाएगा, कल जी सर, आ जाएगा ये, तब जी सर, इसको प्रमोशन जैसे करना है, या जैसे आप भी अगर देखोगे और लोग देखेंगे, पर उसको जो तरीका है करने के लिए, कैसे उसको प्रमोट करना है, कैसे उसको, उसमें हम थोड़े कमजोर हैं, थोड़े क्या बहुत कमजोर है, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल, वी नीड सम प्रोफेशनल सपोर्ट। तो उसके लिए मैं आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा था। सर मैं एक बार ना चैनल देख लूंगा, and after looking at the channel I will be able to suggest ki so far how we have gone and how we can take it to the next step. I'll just interfere here for a minute. Dr. Vola, Anupam Jain is also online today. She's in the meeting, and she had a digital marketing session some time ago where Paris had joined. So I think that is a part of digital marketing. Jasvi, I'll just take 2-3 questions also with you, since you permitted us to moderate this session. आप संजय, आप एडमिटेड की बात कर रहे हैं, इसी सिलसिले में 2-3 क्वेश्चन है कि अगर आज ऐसा ही आपको एक और सब्जेक्ट लेना पड़े इन चंडीगढ़ एंड एनीवेयर इन इंडिया, यू नो, सो वन सब्जेक्ट ऑफ चंडीगढ़, आप किसको लेंगे? और अगर देश में किसी को भी ऐसा एक सब्जेक्ट आप लेंगे तो आप किसको लेना चाहेंगे? दैट इज माय क्वेश्चन, एंड देयर आर 2-3 मोर क्वेश्चंस आफ्टर दिस। जी सर, अभी right now I am writing a film which I will begin filming in I guess July now, because abhi till June तो we have restrictions on filming locations badly and crowd हम use कर ही नहीं सकते, तो I am actually writing on the internet and the जिसका कहते हैं ना, जो इंटरनेट का हमारे बच्चों पे असर हो रहा है। I mean our children are using WhatsApp, बच्चे, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं अभी 7th-6th क्लास में, and the vulnerabilities that they are exposed to using the laptops, the internet and the WhatsApp, और बच्चों पे जो impact हो रहा है उसका, I am working on that right now, and I think that is the next thing, because online education के बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि unpreparedly बच्चों के हाथ में डिवाइसेस और इंटरनेट का एक्सपोजर जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो की है, और उसके साथ में मैल प्रैक्टिसेस भी ग्रो की हैं। तो माय एंड पेरेंट्स आर टू बिजी अर्निंग लाइवलीहुड एंड टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड अदर थिंग्स, तो वो बच्चों को इतना क्लोजली मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। So my film explores a vulnerability on that, and right now it is under pre-production. So hopefully this film will be released this year. We will be making it this year. Ji. So it's a crime. It involves cyber crime also. So cyber crime is a huge. पिछले 2-3 साल में cyber crime is a huge problem. It's a huge problem. जी. So again एडमिटेड पे ही आऊंगा मैं। ये पिक्चर लगभग 2 घंटे की है। कई फॉर्मेट्स अभी शॉर्ट फिल्म्स के आ रहे हैं, एक जैसे रॉयल स्ट्राइक सीरीज चल रही है, लार्ज शॉर्ट फिल्म्स, और लॉकडाउन का आप कह रहे हैं तो भारत बाला ने बहुत सारी मूवीज बनाई हैं इस दौरान, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द नॉट बीइंग लिमिटेड बाय द लिमिटेशंस। सो
In terms of copyright, मैंने आप क्या shortened version of the same movie, are you allowed to create and broadcast or release उस चीज की, माने या इसमें कुछ जैसे सर्टिफिकेट आ गया तो आप इसको फिर री-एडिट नहीं कर सकते, माने लीगल साइड से माने इसमें क्या रहता है? Do you have full right to release a shorter? Sir, we have the right to tailor it at any extent, but before releasing it, because if the film goes on to public distribution platforms, इसको कहते हैं कि public distribution platform हो गए सर रेडियो और आपका टेलीविजन एंड सिनेमा। इंटरनेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के अंडर नहीं आता है फिलहाल, तो उसमें आप कितना भी क्लिप काट वाट के बना के डाल सकते हो, बट हमने ना स्टोरी लाइन बहुत डिफाइंड बनाई होती है कि ये सीन आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, जिसको हम स्क्रीन प्ले कहते हैं। अगर हम उसे काट ही देंगे तो वो अर्धकटे शरीर की तरह महसूस होता है हमारी कहानी, कि हमने तो पूरे आकार में बनाई है। अब एक बाजू दिखा देंगे तो उससे फिल्म जस्टिफाई नहीं होगी। तो ऑलरेडी एक बेबी प्रोड्यूस फिल्म एक बच्चे की तरह है, उसको बनाने में 2 साल लगे और फिर मैं उसको 2 साल बाद पूरे आकार में बना के कहूँ कि अब मैं हाथ और बाजू दिखा दूंगा, तो वो मेरे लिए बड़ा पेनफुल हो जाएगा। तो वी डोंट टेम्पर आवर फिल्म्स, हम उसको जिस लेंथ में प्लान किया है उसी में बनाते हैं, उसी में दिखाना करते हैं। मैंने पूरी मतलब जुबान जो मेरी विटनेस प्रोटेक्शन पे फिल्म है सर, वो 22 मिनट की फिल्म है। द लास्ट डेट एक फार्मर और उसकी लैंड के बीच, जमीन और किसान के बीच में जो प्यार होता है और जब उस जमीन को बेचना पड़े तो जो दर्द होता है, उसको लेके जो फिल्म बनी 19 मिनट की फिल्म है। बदलती सोच मैंने एक फिल्म बनाई विच इज ऑन जिसको कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हेल्थ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे उसके अंदर कवरिंग इश्यूज थे और वो डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर प्लानिंग और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चंडीगढ़ ने उस फिल्म को सपोर्ट किया था। 6 मिनट की फिल्म थी वो। तो अलग अलग ड्यूरेशन की फिल्में हम उतने ड्यूरेशन में ही बना के उसको दिखाना प्रेफर करते हैं, चेंज नहीं करते बनाने के बाद। So last में मैंने this just a thought, मैंने it's not a question. आप हमारे क्लब में कई रिसोर्सेज हैं जो कभी आप चाहें तो जैसे आप एजुकेशन की, बच्चों की बात कर रहे थे, तो वी हैव चंद्र प्रकाश जी also attending today's meeting. He is from the education stream. Running a school. अगर आप लीगल साइड से कुछ करना चाहते हैं तो वी हैव डॉक्टर बलराम गुप्ता, वी हैव राज राहुल who are attending today's meeting. अगर आप चंडीगढ़ की हिस्ट्री पे कुछ करना चाहते हैं तो पास्ट प्रेजेंट पल्लव जी हैं, वो आपको तो पूरी स्क्रिप्ट लिख देंगे चंडीगढ़ की हिस्ट्री के ऊपर। सर सबसे पहले तो मुझे लगा रोटरी को एक प्रॉपर ना मेंबर्स की डायरेक्टरी विद देयर कोर एक्सपर्टीज बना लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो सब लोग डोमेन में बड़े पावरफुल हैं, ऊपर से सब मल्टी टैलेंटेड भी हैं, तो उसमें मुझे ये पता लगना चाहिए कि ये सर मैम का स्पेसिफिक मतलब कोर एरिया है और ये उनका एक्सप्लोरिंग एरिया है, तो फिर मैं डेफिनेटली सबसे रीच आउट कर पाऊंगा। The idea से give and take because we are taking so much from you. I thought this is something I will give to you. Sir, I think I will be needing a lot of help when I'll be making my this very ambitious project on जो बच्चों के ऊपर जो क्राइम हो रहा है, because now we are in a stage, you know, where government full fledgedly help नहीं कर पाएगी resources में और permissions देने में, because filming units हमारे बहुत छोटे कर दिए हैं, crowd scenes हम shoot नहीं कर सकते because बहुत जगह section 144 लगा दिया है, lockdown लगा दिया है and restrictions बहुत कर देते हैं, तो we will be needing a lot of help from the members to, you know, if somebody has a hall, they can grant us the hall. Somebody has a office setup, you can give us that setup. So I think best you can help us with some resources. That will be great. So any more questions by anyone? And also watch the film once it releases. So my audience has to be very loyal one. So do you also help the industry or the trade who are wanting to showcase their activities to their employees, large companies?
because all the Yes, people sir. are not able to see their activity. They are doing good job, Yes, sir. particularly in the field of corporate social responsibility. And Yes, sir. do you help them also? Yes, sir. Sir, so Okay. basically, for example, a lot of companies work with, you know, जिसको क्या कहते हैं, अपने डीलर्स को प्रोत्साहित करने के लिए. अब तो lot of dealers don't know what the management right now is thinking, and they still want to be motivated. You know, the company wants to motivate the dealers because competition बहुत है. So we create films for them. So we discuss with them. They reach out to us. Ki what do they want to achieve if there's something new they are coming up with? So we produce that, and then I think ये companies ना अपने summits वगैरह करती हैं, where they call all their Punjab के dealers, all their North India meet people, and they showcase them, or star performer of the year. So what या उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई case crack किया हो, so they show it to their own team. So they internal films बहुत बनती हैं, sir. अच्छा. You are helping them. Yes, sir. Yes, sir. How much? That's. Yes, sir. Do not go during these days for a shoot, Sharma. Don't go ma'am, I for a can't shoot. go. I can't go anywhere. I know. Good. That's very good. नहीं ma'am, अभी actually we are not filming anything till May 31st, and I shut down our offices on 17th of April. But whatever we had filmed till March, because again, unless we don't film, the company can't sustain, and so we have to work also intelligently and silently also, and maintaining health and other factors. So we have to work, ma'am. You know, my granddaughter. Hello, my granddaughter. Hello, my granddaughter Yes, Kriti ma'am. Vij does web series, and she went for a Ji, ma'am. shoot during the pandemic. Thank God she's come safe and sound. She went to 6-7 places. Ji, ma'am. She was advertising for Ji, ma'am. the electric car. Ji, ma'am. Thank God she's home. जी मैम, ध्यान तो रखना पड़ेगा, but काम भी करना पड़ेगा, I because know. we all have to work also again. And hello, I just wanted to Right. say that you guys are doing a very good job, and I live in Norway. I'm Dr. Indu Luthra's daughter, the one who just spoke just now. Yes, sir. And I'm a doctor. I'm an ophthalmologist, eye doctor. So in case you need any help in that way, please go ahead and get in touch through my mother. ma'am, I would love to travel to Norway to shoot the Northern Lights. I think that Yes. is a dream, and Yeah. that is a cinematic experience I would like to capture. I think I Yeah. might fly It is very anytime next beautiful. year. Absolutely. Yes. Thank you, ma'am. You're welcome. It's a beautiful country, beautiful in the world. Norway, must go. So thank you, Ajashree. It was really nice listening to you. I will request Rotarian Suman Gupta ma'am to kindly give the expression of gratitude. Suman ma'am, unmute. हाँ जी. Yes, sir. Am I audible? हाँ जी ma'am. Thanks a lot, Sanjay sir, for giving me this an opportunity to say a few words of thanks to our chief guest, that is Rotarian Ajasvi Sharma. वैसे मेरी niece का नाम भी Ajasvi है. She is living at Jalandhar. Thank But she's a girl. It's really a very good change that after a long time, day and night, we listen COVID, data, news and all. It's a really a good change for us, all of Rotarians and all whosoever is listening. It's very good that we are changing. Last week also, we were having a very good, that is topic on aviation. And this week we are really, this was an entertaining topic. And after a long time on films, especially, Yeah, very, right. very good topic, nice and entertaining and enjoyment. For a moment, even we could not skip that. Really, it's very, and your way of explanation, Ajasvi, is very, very nice and very interesting.
And this Thank you. and the answering of every questions is really praiseworthy, so attractive, and very well defined. You have the difference between old movies, like Dua sir asked the questions, that old movies and new movies. It is very well answered, and we are really satisfied for your answering the questions, and we enjoyed. And I am really surprised that you are so young age and you are having so much that is awards. I know. Really, it's really praiseworthy. And it depends, yeah, it's very good explained that it depends upon the audience to choose, to select that, like you have given example that it's like a food, you select yourself according to your taste, because everywhere that food is displayed every time, but you have to choose. So similarly, we have to choose the films which we have to see or which we have not seen. And one thing more very interesting you have said, that film is like factory where you have to manufacture, where you have to produce, and everything. You finance also you have to see. It's really a praiseworthy work which you are doing. And especially for kids, you told that, given the example of Ashiana that you are doing for, really it's very nice that for 700 children, this movie, no doubt I have not seen, but it's really good that for Ashiana you have done this, and we hope that you will do this. I'll be sharing the link to, I'll be sharing the links of these films so that you can all watch them at home. Aram se bilkul. Honestly speaking, I have not seen your any movie till now, but now really excited. मैं कोई नहीं, मैं links भेज दूंगा सबको ना group में भी. Yes, you must, so that, because as Dua sir said that we are always looking for this, the same channel 318 Tata Sky, old movies. So same movies, Mughal Azam, that all these movies. So we don't see these modern movies, but your movies, maybe short movies that we must see. This is I felt today. So also it is true that film's reflection is of society. Really, it's society. It depends that how the society, how the audience look at the movie. Maybe 3 Idiots, maybe any movie. Generally, people nowadays go for entertainment. They go, they watch the movie, they spend the money, and they come. They don't learn any lesson or something. I think so. I don't know better about. But now people, especially young people, young children, they go for just entertainment because exposure is too much. That's why they don't select. So thank you, Mr. Sharma. It's really nice to listen. Ojasvi, rather good name. So it's really good, and we hope and we wish that you do your work like this, maybe epidemic, but you continue. We wish you all the best. Stay blessed. Stay happy. Thank you. Thank you, ma'am. मैंने कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूँ आपको. मैंने कुछ ना सिलेक्ट कर दिखाओ भाई. जी सर. ये फोटोग्राफ है with Honorable Governor of UT Chandigarh and बदनौर सर के साथ administrator. हाँ जी, he's the Governor of Punjab. तो I filmed the campaign for Military Literature Festival and उसमें बहुत अद्भुत किस्सा था. We had given a script to Governor sir कि सर ये लाइनें हैं आपकी, क्योंकि it's a ad only ना, तो ad में तो लाइनें फिक्स होती हैं. But when I went and पूरा हमारी टीम जाके सेटअप करके खड़ी हो गई, तो गवर्नर सर कहते हैं कि अब मैंने सर को कहा कि एक होता है कि कोर कॉम्पिटेंसी जो हमारे रोटेरियंस की है और एक इंटरेस्ट होता है. तो अब मुझे मिलने के बाद पता लगा गवर्नर सर कहते हैं ओजस्वी मैं अपनी लाइनें खुद लिख के लाया हूँ. तो मैंने कहा सर तो ये देखो, तो द कैमरामैन कैप्चर्ड दिस फोटोग्राफ ऑफ मी. मतलब ऑब्वियसली आई एम वेयरिंग, ये दिसंबर की फोटो है लास्ट ईयर, और सर भी स्माइल कर रहे हैं और मैं भी स्माइल कर रहा हूँ. Very nice. Actually, one moment, lifetime moment, where we are both bursting out laughing in the administrator office, and so this is a memory. ये आशियाना चिल्ड्रंस होम की फोटो है. जब फिल्म बनी उनकी, तो देखो कितने बच्चों के साथ ये फिल्म पूरी रिलीज हुई, और मैं इसकी कुछ मोमेंट्स हैं. तो फिर
ये फिल्म का लॉन्च हुआ मैम, पूरे मैं दिखा रहा हूँ। ये ही इज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पंचकुला मुकेश आहूजा जी, और क्राउड आप देखें पीछे तक लोग भरे पड़े हैं, मतलब एंड ये फिल्म लॉन्च हुई थी, जो मैं जिसका लिंक भेजूंगा आपको, और बहुत बड़ी इसका लॉन्च हुआ। और पोस्टर, जी जी, और पोस्टर पे देखो जितने भी लोग देखने आए थे ना जी, उन्होंने इतने साइन किए मूवी पे, ये देखो सबके साइन, ये इतने सिग्नेचर्स लोगों ने अपनी विशेस फिल्म को देखने के बाद लेके गई। तो ये है 2019 में फिल्म रिलीज हुई थी, और पोस्टर बहुत सिग्नेचर, मतलब ये अगले दिन तक तो ये बोर्ड भर गया था, मतलब और कितने साइन हुए होंगे उसमें। मेरे पास तो फर्स्ट डे की फोटोग्राफ है, और जी तो यही कुछ फोटोज थी। मैंने कहा कुछ दिखाऊं आप लोगों को। हमारी क्लब ने वहां पे कंप्यूटर सेंटर सेटअप कर रखा, अभी है डोनेटेड 16 कंप्यूटर्स। सर तो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द फिल्म, यू मस्ट वॉच द फिल्म, यू विल सी योर कंप्यूटर सेंटर। Thank you so much. Involved in promoting that. Very nice. And thank you so much. Thank you Ojasvi for being with us today. मैं तो यही कहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है. You have so much talent, and you know, this one is just scratching the surface. When I say talent, you know, it is lucky that we have someone like you here in Chandigarh, because normally, you know, it is Bollywood, it is Bombay which calls people like you. But I'm sure Chandigarh will also have a lot of opportunities considering your interests. Just like you had a picture called Admitted, there is also a book, Abandoned, which is written by one of our members, Vinny Sachdeva, who also works, is right now positioned with the Social and Child Welfare Department, because आप अपना topic, अपना interest बता रहे थे, so I'm sharing this with you. Prior to that, she was also working with the juveniles. So if you need any help, definitely, but we would definitely want to see more of you in our meetings, or even with your work. And I'm glad to see members across all age groups being so interested, you know, because very interesting, very interesting. So thank you so much. I would now invite Secretary Shuchi for the announcements. Thank you, Sanjay sir. Can everyone see the screen? Yes. Okay, we have the birthdays of Rotarian PK Vasudeva today itself, and wedding anniversary of Chandra Prakash sir and Lalita ma'am. Chandra sir, if you can hear it, congratulations on 9th. Congrats. Congrats, Chandra sir. I think he's left. I saw him though. He was there, yes. And 10th, we have the wedding anniversary of Vinny ma'am and R.S. Rupender Singh Sachdeva, who are doing great job together. They have no time to talk to anyone. सांस लेने की फुर्सत नहीं है. फ्री में पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने ऑक्सीजन बांटा है, और अभी लगातार बांट रहे हैं. They're doing great seva right now. I'm a personal beneficiary of what they're doing. We have the wedding anniversary of Rotary and Santosh and past President Rotarian Dr. Kesharam Gupta on 11th of May. Congratulations to all of these lucky people. Let's hope they celebrate their anniversaries for many. Chandra sir, you're there. I'll just spotlight him. Congratulations, Chandra sir. Well, Chandra ji. Thank you. Congratulations, sir. Happy anniversary, sir. Thank you very much. Thank you. Happy anniversary. Happy anniversary, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Congratulations, Lalita. आप तो हैं वहाँ. क्या बात है. Many congratulations. Thank you. बहुत बधाई हो. Thank you, Sanjay sir. Over to you. Thank you, Shuchi. So we come to the end of today's meeting. Thank you everyone for being here. We will have this room open for another 10 minutes for fellowship, and we would see you again. We would see you again next Friday. Thank you and good evening to everyone.